علم اور عقل۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود، لمیٹڈ، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے محرک ہوتا ہے۔ خیال یا یادداشت کا نام ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہے، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کی شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ، ایکسپیرینس ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی پاسٹ ہی ہمارا تمام تر علم، نالج ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی، پاسٹ ہے۔ علم، نالج اپنی حقیقت، ریئلٹی میں ماضی، پاسٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت، فیکٹ ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اپنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں، جسے وہ علم کہتا ہے، وہ دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورت حال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثاتی انسان
की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हमारे फैसले की, हमारी अक्ल की और हमारे इल्म की कोई बुनियाद नहीं होती। हम अपने तमाम फैसले अपने माजी के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए कर रहे होते हैं। ऐसे महदूद तर ज़ाविया नज़र से हम सच तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम हाल में प्रेज़ेंट में बैठकर अपने माजी पास्ट का तज्जिया करते हुए अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के खुदुखार बनाने और इसे तब्दील करने में मसरूफ़ होते हैं, जबकि हमें तख्लीक करने वाला हमारा मालिक हमें कहता है कि कोई जी रूह नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। बेशक अल्लाह ही को क़यामत की खबर है और वही मीना बरसाता है और वही जानता है जो कुछ माओं के पेटों में होता है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वो किस ज़मीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। इंसान क्यों नहीं जानता? इस राज से पर्दा सूरह अल-बकरा की आयत 30 से 33 में उठाया गया है, जब अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब इंसान को बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने हैरत से कहा कि ऐ रब, ये तो खून बहाने और फसाद करने वाला है। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर एक मुद्दत बाद फरिश्तों से पूछा कि इन हशिया के इस्मा बताओ। इन्होंने आजिज़ी की कि अल्लाह, तूने जो बताया हम वही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदम को हुक्म दिया तो इसने नाम बता दिए। अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि हमें अशिया के नामों का इल्म है और इनके अच्छे बुरे ख्वास का भी इल्म है, लेकिन हम किसी भी शय की हकीकत नहीं जानते। आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे इल्म में कोई एक शय भी ऐसी नहीं जिसकी असर, हकीकत और माहियत का आपको इल्म हो। माचिस का पता है कि इससे आग जलेगी, फायदे का भी पता है और नुकसान का भी, लेकिन आग बजाते खुद क्या है? कुछ गैसेस का मजमुआ। अच्छा, गैस अपनी असल में क्या है? इसकी एक्चुअलिटी क्या है? माचिस में तीली है, इसके सिरे पर मसाला है। तीली लकड़ी से बनी है, लकड़ी दरख्त से आती है, दरख्त के पत्ते शाखें हैं, तना है, इसकी जड़ है, दरख्त बीज से बनता है। हर शय का बीज होता है, लेकिन ये बीज असल में क्या है? जब भी आप किसी शय की जड़ रूट तक जाएंगे तो देखेंगे कि किसी भी शय की असल हकीकत का हमें कुछ भी ज्यादा इल्म नहीं। दिया तो गया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। हमारा इल्म महदूद है, लिमिटेड है। जब तक हम इस हकीकत को समझकर मान नहीं लेते, तब तक असल इल्म का दरवाज़ा हम पर नहीं खुलता, ना ही नफ्स का तज़किया हो पाता है। फरमाया, रब ला शरीक ने इंसान जालिम और जाहिल है, तो हम अपने रब की इस स्टेटमेंट को क्यों नहीं मानते कि हम जाहिल हैं? मानेंगे नहीं तो जहल का तलस्म कैसे टूटेगा? हमने आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों के सामने इमानत पेश की, फिर उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इसे इंसान ने उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल था। इल्म और अक्ल के अलावा भी एक शय हमारे पास है जिसे शऊर कहा जाता है। ये एक बड़ी आँख, एक वसी तर ज़ाविया नज़र है। हमें एक लहजे में पता है कि हम कौन हैं। अपनी सारी ज़िंदगी से हम एक लम्हे में बाखबर हैं। इसके लिए हमें किसी इल्म अक्ल की ज़रूरत नहीं है। हम बाखबर, अवेयर हैं कि हम जिंदा हैं। हमें अपने जिस्म, हवास और इल्म अक्ल का शऊर, अवेयरनेस है। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा शऊर है। एक मिसाल से समझते हैं। आपने अक्सर डायरे के शुरू में दुनिया का नक्शा देखा होगा। इस नक्शे में अगर आप कोई शहर ढूंढ रहे हों तो आप नक्शे में गुम होते हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं या ये इल्म है
अकल है। इस नक्शे को, इस मैप को एक नज़र में पूरा देखने के लिए आपको कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर मंजर छोड़ना होगी, सवार छोड़ देना होगा। आपको एहसास होगा कि आप कुछ नहीं ढूंढ रहे तो आप पूरा नक्शा देख सकते हैं। अब पूरी दुनिया एक नज़र में आपके सामने है। यही शऊर है। क्या इंसान इस बात पर कादिर नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी पर एक नज़र डाले और सब देख ले? क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या वजह है कि हम बाशऊर होने के बावजूद बेशऊरी की जिंदगी को तरजीह देते हैं? हमेशा सारी जिंदगी छोटे छोटे मसाइल के हल में मसरूफ आदमी खुद को पूरे तौर पर देखने को तैयार नहीं होता। क्यों? तमाम जहानों का रब फरमाता है कि हमने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स पर पैदा किया है, यानी एक ही नफ्सियात पर। हम सब की एक जैसी नफ्सियात और एक ही जैसी नफ्सियाती खलजान है। हमारे हालात और वाक़यात जुदा जुदा हैं, लेकिन इनसे पैदाशुदा कैफियत और जज्बात एक जैसे हैं। इसलिए किताब में जहाँ मैं लिखा गया वो आप हैं, और जहाँ आप लिख दिया वो मैं भी हूँ। एक ही बात है, सब में एक ही नफ्स कार फरमा है।